اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی۔ ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ چھٹی قسط۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ زمین تیری پہاڑیاں، برفانی پہاڑ اور جنگل مسکرا رہے ہیں، میں تیری سطح پر کھڑا ہوں، میں مغلوب نہیں ہوا، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا، مجھے زخم نہیں لگے، میں سالم ہوں، مجھے کوئی قتل نہ کر سکا۔ یہ ہے آگ کے دریا کا بالا قامت کردار گوتم نیلمبر، اور اپنے جگ کے پورے پس منظر میں ہندو تہذیب کا جگمگاتا ہوا روشن نشان۔ اس کے مقابلے میں مسلم عہد کا ترجمان ابو المنصور کمال الدین قرۃ العین کے موئے قلم کا جس قدر احسان مند ہو سکتا ہے، وہ اس کے کردار کے چند پہلوؤں سے خود ہی روشن ہو جائے گا۔ ابو المنصور کمال الدین پگڑی باندھے، کمر سے تلوار لٹکائے، سرجو کے کنارے گھوڑے سے اترا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی محبوبہ چمپا ندی پیر کر گھاٹ پر آ گئی اور سیڑھیوں پر بیٹھی بال سکھانے لگی اور کمال کی باتوں پر ہنستی رہی۔ اسے ہنستا دیکھ کر کمال نے کہا، ہنستی رہو، ایک روز زبردستی اڑا کر لے جاؤں گا، پھر بعد میں جو چاہنا کہنا۔ ہے ایسا اندھیر نہ کرنا، شکر کرو یہ گاؤں ہے جہاں تم سے بات کر لیتے ہیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ جون پور میں اگر اس طرح تم گھنٹوں ہم سے باتیں کرتے تو دیکھتے اپنا حشر۔ جون پور میں تو میں تم کو قطعی بھگا لے جاتا، لے جا کر سیدھا اپنی حویلی میں بند کر دیتا۔ اور کچھ آگے؟ کل تم اپنے برآمدے میں بیٹھی کس کو حسینی کانٹڑا سنا رہی تھی؟ تم کتنے آدمیوں سے ملتی ہو؟ کیا ہم اس بات سے سرسری طور پر گزر جائیں کہ ناول نگار جیسے ہی مسلمان عہد کے نمائندہ کردار ابو المنصور کمال الدین کو اپنے قارئین کے سامنے لاتی ہیں تو اس کو اس مکالمے کے ذریعے متعارف کراتی ہیں؟ اگر یہ مکالمہ آگ کے دریا سے نکال کر علیحدہ سے کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو دیکھنے والا لازماً شرط لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ ہرگز قرۃ العین کے تراویش قلب کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی چنڈال چھوکری یا تلوار کا دھنی جیسے چار آنے والے قصوں کے ہیرو ہیروئن معلوم ہوتے ہیں۔ قرۃ العین جس نے سفینہ غم دل، میرے بھی صنم خانے لکھے اور کسی بھی جگہ ایسے عامیانہ اظہار عشق کا مظاہرہ نہیں کیا،
भला वो ऐसे थर्ड क्लास किस्म के मुकालमे लिख सकती हैं भाई, बल्कि लिखा है उन्होंने, देख लो सफा 139 आग का दरिया। इसके मुकाबले में गौतम और चंपक की पहली दूबदू मुलाकात का मुकालमा देखिए। तुम कहां पढ़ते हो? उधर कुलपति गुरु परशिवतुम के आश्रम में। मैं परितमा का रीख हूं, सिर्फ तकय्युल की बिना पर दिल की आवाज सुनकर तस्वीरें बनाता हूं। मेरी कद्र विश्वाकर्मन को करना पड़ेगी, जो सबसे बड़ा चित्रकार है। विश्वाकर्मन? तो तुम मुल्हिद नहीं हो? आजकल तो तालिब इल्म कपिल और शाक्यमुनि के ज्यादा कायल हैं। मुझे आटा ला कर दो, मेरा रास्ता खोटा होता है, गौतम ने बिगड़ कर कहा। ये हिंदू अहद का एक हीरो है, जो अपने आप लिए दिए बात कर रहा है, और वो है मुसलमान अहद का उठाई गिरा आशिक, जो एक हिंदू लड़की को भगा ले जाना चाहता है। हाँ साहब, साफ भगा ले जाना चाहता है और अपनी हवेली में ले जाकर बंद कर देने वाला है। जिक्र अगर किसी कमाल नामी एक शख्स का होता तो किसी के फट्टे में पैर अड़ाने की जरूरत ही क्या थी। मगर यहां कमाल बस कमाल नहीं, बल्कि उस अहद का मुसलमान है जो बाहर से आया है। नगर नगर उसने हिलाली परचम चढ़ाए हैं और घोड़े दौड़ाए फिर रहा है, और गांव की चंपाओं लीलादितों ले जा रहा है और अपनी हवेली में बंद किए दे रहा है। क्या अंधेर है। और फिर गौतम और चंपक में जो इल्मी और फलसफियाना नोकझोंक होती है, इसमें दोनों का ज़हनी उलू उभर कर सामने आ जाता है, और गौतम को अपने अकीदे व ख्याल पर जो एतमाद है, उसको नाविल निगार का कलम मजरू नहीं होने देता। लेकिन यहाँ कमाल जो बगदाद के मदरसों में बहुत से नजरियों पर गौर व फिक्र कर चुका था, बुखारा के इब्न सीना, अल-फाराबी, ईरान के राजी, अंदलुस के इब्न रुशद, इब्न अरबी और इब्न खल्दून का मुताला कर चुका था। अरब अक़वाम की तारीख लिखने वाला था और जौनपुर के शाही कुतुब खाने का निगरान था, और जिसके पस मंजर में सारा इब्रानी तमद्दुन था। कुलदानियों और फनीखियों और असूरियों वालों की रिवायात थी। वो इस कबीर दासी चंपा जैसी गांव की छोकरी के हर फिक्रे से मात पर मात खाए जा रहा है, और जवाब ना बन पड़ने पर इस किस्म के आमियाना जुमले कहकर पीछा छुड़ाना चाहता है। फिर तुमने कमीनी बातें शुरू की, फिर वही मुर्गे की एक टांग। तुम औरतों से कौन बहस करे, तुमको समझाना बेकार है। क्यों? इसलिए कि इसके पास तलवार के सिवा कोई दलील नहीं है। उसके सारे उलूम की बुनियाद ही खोखली है। वो कोई आदर्श नहीं रखता, उसे अपने अकीदे पर एतमाद नहीं, उसके इस्लाम में ना वो रस है ना शक्ति जो इस कबीर दास की भक्ति के आगे ठहर सके। कमाल का ये मनफअल किरदार जो मुतासिर होता जा रहा है और अंदर ही अंदर मस्क हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, आखिर किसकी शौक़िए तहरीर का फरियादी बने। उसके इल्म व ईकान की ये शिकस्त, उसके जहन की ये पामाली, उसके आखिरी अंजाम तक एक तसलसल के साथ बराबर दिखाई गई है। वो चंपावती से ही नहीं हारा,
भड़ाइच के खंडर में नरगन राम की रट लगाने वाले साधु से मरूब हो गया। पटना के घाट पर मिलने वाले जोगी ने उसे मबहूत कर दिया। नारंगी लिबास वाले भक्षु के सामने तो वो बेबसी से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मेरे ख्यालों से नजात दिलाओ। और जब वो काशी में कबीर के दवार पहुंचा है तो उसके अंदर उसका अपना कुछ नहीं रहा था, ना इल्म, ना ईकान, ना खुदी, ना अना। हिंदुस्तान के मौसमों के सहर ने उसको अंदर ही अंदर निगल लिया था और उसका खोखला वजूद ऐसा तानपूरा बन गया था जिस पर राम रहीम एक ही नाम आसानी से गाया जा सकता था। मौत से पहले बंगाला के गांव में जब वो बालों की लटें और दाढ़ी बढ़ाए, चार खाना तहमत बांधे, हाथ में एक तारा लिए विष्णु नगमा आलाप रहा था, तो कौन कह सकता था कि तौहीद का रसिया अबुल मंसूर कमालुद्दीन यही है जो 50 साल इधर इराक से हिंद आया था। नहीं, वो कोई दूसरा इंसान था। कमाल की इस मानवी तहरीफ व मस्क पर क्या मैं अपना सवाल ना दोहराऊं? ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा भारी सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर। गौतम नीलंबर की कामयाब मशातगी के बाद अबुल मंसूर कमालुद्दीन का मुरक्का खींचते हुए तुम्हारा कलम फीका क्यों पड़ गया? ये नावल के एक कयाली किरदार नहीं बल्कि एक पूरी कौम की तारीखी सरगजिश्त और उसकी आबरू का सवाल है जिसके मुकद्दर को दयानतदार मौर्रिख तुम्हारे नोके कलम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताजा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला